myself, Namaskar. Yes. Abhishek ji, if you allow, Namaste. so can we start? हाँ, Mohit ji, all set? Can we start, sir? Sure, sure. So I will be starting now. Yeah, please, please. I believe somewhere there is a issue. Is Nitin sir also present? Well, Nitin is not here right now. The thing is that, so myself, C. Sumit Kabar. So I'm requesting, first of all, I'm welcome all the participants and specifically Abhishek ji and Mohit Chaudhary ji. Today's Yes, sir. topic to be taken by C. Abhishek Jain ji. Intercases between 44 AD, 44 ADA, and 44 AB, and amendment in 43B with respect to late payment. And thankfully, our session chairman, CA Mohit Chaudhary ji, is also with us. May I Thank you, request sir. CA Mohit Chaudhary ji to kindly Sure. state some words. Sure. And now I'll be starting with the seminar. So a very good evening to one and all present today. On behalf of Knowledge Tree and Global CA, I CA Mohit Chaudhary. I'm present with this opportunity as session chairman for today, and as with the responsibility of ensuring that our time here together is productive and engaging. Today we are present here to share knowledge, exchange ideas, and also have engaging discussions. As we embark here today, we encourage all to actively participate, contributing insights, asking queries, and discussing latest judicial precedents and making the most out of today's webinar. Our topic for today is intricacies between 44 AD, ADA, and AB, and amendment in 43B with respect to late payment. As we delve into discussion, the open-mindedness, different perspectives, and unique experiences enrich our understanding and enable us to see different horizons. Let us embrace and use it as a catalyst for learning and growth. In spirit of constructive dialogue, we urge all to engage here, asking questions and clarifications. The true value of this session lies in both the things, the knowledge imparted by our speakers, and also in the collective wisdom that emerges from our interactions. Also with this, let's welcome our speakers for the day, CA Abhishek Jain ji and CA Nitin Kaur ji, ex-vice chairman in IRC of ICI. It's great to introduce our esteemed speakers for this session, renowned professionals in the field of direct taxation. Today we get the opportunity of gaining insights from both of them, whose wealth of knowledge and experience promises to elevate our understanding and inspire us all. So with this, without further delay, moving on to the seminar, as we listen to our speakers today, let us all absorb the facts, figures, passion, and dedication that they bring to the table. So with this, Abhishek sir, we may start with the session today. Thanks a lot, Mohit Bhai, for your great modulation with respect to the subject. As far as what you have said regarding the successful seminar, because it depends upon both the side, the speaker and the person who was listening and the interaction between them. तो हम आज इस सेशन की बात करें उससे पहले रियली थैंकफुल टू ग्लोबल सीए नॉलेज ट्री नितिन भाई, I believe he will join in due course, Sumit bhai, and whom I know, Sushil Agarwal sir from Seeker. He was chairman of Seeker branch, and if it will be great if we have a video of you, and believe me, this session will be again a great help in with respect to the closing nearby closing of March 2024. और वो इसलिए भी important रहेगा, reason being एक 43B section, and of course I am receiving number of calls and messages even on my YouTube videos कि ये होगा कैसे. तो बहुत सारी ऐसी चीजें intricacies है 44AD, 43B, 44ADA, ऐसे कई इंटरेक्टिव चीजें रहेंगी. एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पुट इन द चैट बॉक्स, I will take up immediately. I will try to take up immediately, and we will try to wrap up the entire discussion with a very crispy manner without taking much time. अब हम बात करते हैं. Even I'm just sharing the slide with all of you. Wait for a while. आपका वीडियो ऑन रहेगा तो I will be even able to take a name of the person who is really keen to hear
this knowledgeable content. Wait for a while, wait for, I believe मेरे ख्याल से मेरे को right नहीं दिया गया क्या? Sharing आ गया right, got it. Mohit bhai, please give me a note whether screen is visible to you or not. It's visible, completely visible. Slide is visible enough, right? Yes. MSME की सबसे पहले हम बात करें, नंबर ऑफ सेशन आई हैव डिलीवर्ड, और कई बार तो ऐसा हुआ कि ऐसे कॉल आने लगे कि सर हम MSME में है नहीं, और वेट फॉर अ व्हाइल, विनय जी सेशन में हो कोई अर्जेंट? हेलो, सेशन, सॉरी। तो कई बार ऐसे कॉल आए कि हम MSME में, वैसे तो देखा जाए मैं उस डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, बट स्टिल कई बार ऐसे कॉल थे कि आप सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री आर एलिजिबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर MSME, और इसके अलावा और किसी को अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग ले सकती है वो, पर्टिकुलरली आप देखा जाए तो प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, क्या ये जो प्रोविजन है 40, पहले उसको समझते हैं, फिर ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही है, हम उनको समझते हैं। MSME के अंदर जो चेंज हुआ 2023 में, वो उसी की बात करेंगे हम। बाकी पुराने जो MSME के प्रोविजन चलते आ रहे हैं उन पे टच नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे इस सेशन में। अब देखिए सेक्शन 15 से लेके 22, 15 to 22 MSMED एक्ट 2006, ये ओवर राइडिंग सेक्शंस है। इंडिया में चाहे कोई सा भी लॉ हो, सबके ऊपर ओवर राइड करें, ये किसी की नहीं सुने। और सेक्शन 15, 16 तो और भी खतरनाक सेक्शंस हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है सेक्शन पहले नहीं थे और 2023 के बाद में इन्वोक हुए हैं या एक्टिव हुए हैं, ऐसा कतई नहीं है, ये पहले भी थे। बट अब क्या हुआ, इन सेक्शन को हमारा इनकम टैक्स का जो वेल नोन सेक्शन है, वेल नोन ही बोलूंगा, वो बड़ा 43B, उसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया। इस कारण से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। सेक्शन 15 और 16 पेमेंट से रिलेटेड है, और ये बोलता है कि अगर कोई बायर, अगर सेलर MSMED है, MSMED में रजिस्टर्ड है, और उसको पेमेंट विद इन 15 डेज और 45 डेज, आता हूं उस पर भी, पेमेंट नहीं करता, तो जो एक्सपेंसेस और परचेज आपने P&L में डेबिट किया है वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसको 1 by 1 समझते हैं हम, बड़े आसान भाषा में समझेंगे, ज्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे। अब ऐसा क्या था, पहली बात है कि MSMED में रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए से। देखो मैं आपको बता दूं, ये 2022 में एक केस लो आया, उसमें MSMED का बेनिफिट दिया नहीं गया। पहले तो क्या था कि जो MSMED है वो बाय डिफॉल्ट है, अब ऐसा नहीं है। इफ यू आर अंडर, यू हैव गेट रजिस्ट्रेशन अंडर MSMED एक्ट उद्यम आधार, तो आप MSMED की डेफिनेशन में हो विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन MSMED एक्ट 2006, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सर अब प्रोविजन डिसअलाउड, एक्सपेंसेस तो डिसअलाउड होना है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, क्योंकि 43B क्या बोलता था, 43B ये बोलता था, हमारे A से लेके शायद F तक सेक्शन है 43B के अंदर, जो कि पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, irrespective the method of accounting the assessee has employed, either accrual or cash method। इन दोनों में से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेथड है। हम क्या करते थे, बड़ा काफी टाइम से है, हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी ये सेक्शन रेफर करते हैं, और जैसे बोनस है, टैक्स सेस है, अगर वो P&L के थ्रू डेबिट हुए तो, यानी अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस जो कि 43B के अंदर मेंशन्ड है, रेस्पेक्टिव ईयर, यानी हम मान के चल रहे हैं 23-24 के अंदर डेबिट किया है, यानी कि एक्सपेंसेस क्लेम किया है, उसका पेमेंट हो जाना चाहिए मार्च तक।
43B ये बोलता है, तो ही हम आपको क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। इसका प्रोविजो साथ में अटैच था, इसका प्रोविजो साथ में अटैच था। वो ये बोलता था कि कोई बात नहीं, अगर एक्सपेंसेस है और उसका एक्सपेंसेस का प्रोविजन या एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए हुए हैं P&L में, उसका पेमेंट कब तक हो गया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक, तो भी हम उसको कंसिडर कर लेंगे। यानी कि एक मान के चल रहा हूं मैं 31 जुलाई 2024 23-24, अगर वहां तक भी पेमेंट या ऑडिटेड केस है तो आपका हो गया आपका 31 अक्टूबर, वहां तक हो गया तो भी हम मार्च के अंदर कोई डेबिट हुआ पेमेंट हो गया उसका अक्टूबर तक तो भी अलाउड है। बट अब एमएसएमई एक्ट विद रेस्पेक्ट टू 15-16 जो सेक्शन है उसमें कहा गया, अगर एमएसएमई से आपने कोई भी परचेज किया है और उसका पेमेंट मार्च तक करना है तो मार्च तक ही करना है। यानी कि 15 मार्च तक, मैं क्यों बोल रहा हूं उस पर आता हूँ, 15 डेज और 45 डेज। मोहित भाई नमस्कार। 15 डेज और 45 डेज, क्या 15 दिन का भी है? मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, आप इफ पॉसिबल प्लीज टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। अगर 15 दिन और 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता तो वो आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। यानी सर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 43B ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक अलाउड करता है पेमेंट, तो क्या उस समय तक अलाउड है क्या? नहीं है। ये प्रोविजो साफ साफ बोला गया 2023 के एक्ट के अंदर कि वो प्रोविजो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो। यानी कि अगर आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं उनका पेमेंट आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में करना पड़ेगा, साथ ही साथ 15 डेज और 45 डेज भी ध्यान से रखने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब इसी जो इतना डिस्कशन किया उस पर कई क्वेश्चन हमारे आते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे, ये 15 डेज और 45 डेज क्या है? फिर आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 डेज 45 डेज मैं आपको बता दूं। रौनक भाई नमस्कार, रौनक पटेल जी। वीडियो ऑन रहेगा तो इंटरेक्ट कर पाऊंगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, दो तरीके के, अब यहाँ पे आपके मैं वर्चुअल पेन ले लेता हूँ, ये वेट भाई। यहाँ पे दो तरीके के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक किसी के साथ एग्रीमेंट बना हुआ है, दूसरा विदाउट एग्रीमेंट। अब आप समझिएगा एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट, इसका क्या फर्क है। मैं क्वेश्चन लेता हूं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से मोस्टली, क्या हम एमएसएमई का बेनिफिट ले सकते हैं क्या? इफ यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, कैन बी रजिस्टर्ड आवरसेल्फ अंडर एमएसएमई एक्ट? इफ एनीवन कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स कि क्या हम एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर हो सकते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। अरविंद जी थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। यस हो सकते हैं। राइट नीतीश जी थैंक यू, यस हो सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपसे मिला, हम हो सकते हैं। सुरेश बंसल जी थैंक यू, यस हो सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। हम हो तो सकते हैं। अब क्या होता है सुरेश बंसल जी, हमारे पास क्लाइंट का फोन आता है मोहित भाई कि मोहित जी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। मोहित भाई ने रजिस्टर करवा दी और काम हो गया, अब वो पेमेंट दे नहीं रहा, कंपनी रजिस्टर करके काम दूसरे से कराने लग गया। भैया अभी आजकल कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कई ऐसे चीजें रहते हैं, थोड़े दिन रुकता है फिर उसका टेम्पररी वो रहता है। कुछ सर्विसेज हमसे ले ली, फिर हम जब पेमेंट मांगते हैं दूसरे के पास चला जाएगा, फिर तीसरे के पास चला जाए। अब वो चला गया ऐसा। अब बात आती है हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, केस तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि साहब वो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट है 3 टाइम्स बैंक रेट का, मेरे ख्याल से 6 पॉइंट समथिंग है रेपो रेट।
तो उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, उससे रिकवर तो कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, एमएसएमई समाधान एक बड़ा जबरदस्त टूल है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि क्लाइंट के लिए हम प्रोफेशनल्स कोस्ट हैं कि भैया जब हम बिल देते हैं बोलते हैं भाई साहब आपका बिल आ जाता है, पहले तो बिल देने में ही दिक्कत होती है हम कि पेमेंट कैसे बोलेंगे, दे देते हैं तो वो पेमेंट नहीं देता। अब बिल दे दिया, अब हम उसके लिए कोस्ट सेंटर है, भैया हमारा इनपुट क्या है, हम तो अब उनको जब कोई नोटिस आता है, सही कंप्लायंस की पता लगती है जब नोटिस आता है। अब क्या है, क्लाइंट को हमने सर्विस दी और फोन आया मोहित भाई के पास कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो। बीच में मैं एमएसएमई समाधान का जिक्र किया था। एमएसएमई समाधान बहुत अच्छा टूल है रिकवरी के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए काफी बेहतरीन, क्योंकि जब आप ऐसे रिकवर करा के देते हो तो मान के चलिए आप 10% भी फीस मांगोगे तो वो आराम से देगा क्लाइंट, क्योंकि रिकवरी है। हमने कई क्लाइंटों के करवाए, वो आराम से देता है। पर हम जब कोस्ट के बिल देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है उसको। हम आते हैं वापस पॉइंट पे, तो आप एमएसएमई आज हम उस पर बात नहीं करने वाले, पर बहुत बेहतरीन टूल है, इस पर भी कई सेशन लिए मैंने। बट स्टिल हम बात कर रहे हैं उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। अब वो पेमेंट नहीं दे रहा, अब बात आती है कि साहब वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो कौन से दिन से करेंगे, 15 डेज या 45 डेज। देखो, जब मोहित भाई के पास फोन आया, क्या मोहित भाई ने कोई एग्रीमेंट किया उसके साथ कि भैया हम आपको ये, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मिडल जो हमारी सीए फर्म्स है, फोन पे आया या मेल आ गई कि ठीक है काम हो गया। बड़ी फर्मों में पूरा एंगेजमेंट नोट साइन होता है, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है, पेमेंट होता है। हम फोन पाया काम कर दिया, तो एग्रीमेंट तो नहीं है ऐसा। तो अब हम आ गए विदाउट एग्रीमेंट में। अब विदाउट एग्रीमेंट के केस में ये काउंटिंग होगी 15 डेज। अब आती है फ्रॉम, और एग्रीमेंट के केस में 45 डेज फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन मेरा आपके साथ रहेगा, 45 दिन कहां से, वेटिंग फॉर योर आंसर। 15 दिन या 45 दिन? Sir, it should be 15 days from the date of completion of service. Suresh Bansal ji, perfect. Any other answer? Waiting for your answer. मोहित भाई ने डिस्क्लोजर पहले ही दे दिया था कि अब दो वे कम्युनिकेशन होगा तो मजा आने वाला है। मनीष सचदेवा जी बोल रहे हैं डेट ऑफ इनवॉइस, परफेक्ट। अब हम 1:1 हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो गया, एक कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक डेट ऑफ इनवॉइस। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर। जिधर ज्यादा वोट पड़ेगा हम तो उसी पे चलेंगे। 31 मार्च अरविंद जी कह रहे हैं। अच्छा, एक और तीसरा एंगल भी है। So we will not receive डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक और एंगल है। करण नागपाल जी, डेट ऑफ इनवॉइस आई बिलीव अक्षमा यादव जी बोल रहे हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस है। हाँ, आई गोट इट अक्षमा जी, गोट इट। फेट तो सबके साथ चलता ही है, आपने बिल्कुल सही लिखा। फेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का फेट ही होता है। कब कब पेमेंट रिसीव होगा हम नहीं जानते। कपिल वर्मा जी इज सेइंग डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट वेटिंग फॉर, क्योंकि काफी आंसर आ गए और मेरे ख्याल से ज्यादा फेवर जा रहा है डेट ऑफ इनवॉइस पे। तो मान के चलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस, ऐसा ऐसा नहीं। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम मार्केट में या व्हाट्सएप पे या कोई वीडियो आता है, मोस्टली आपने सुना होगा कि 15 दिन या 45 दिन डेट ऑफ इनवॉइस से है। सुरेश बंसल जी ने बिल्कुल कहा कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस करण नागपाल जी ने भी कहा था। मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे आता है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस, दोनों पे मैं आता हूँ। तो कंप्लीट आपने जब सर्विस की है तभी से ये काउंट होगा 15 दिन। तो मोहित भाई, अब देखो, अब क्वेश्चन एक और आता है, अब मोहित भाई ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, अब कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब से? मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा। वेन एवर यूर क्लाइंट आस्किंग फॉर एमएसएमई, और आप अगर एमएसएमई का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो इस कंप्लीशन को आप एविडेंस प्रूफ करें। जस्ट मोहित भाई अब क्या करेगा, एक मेल ड्राफ्ट करेगा और उस पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगाएगा और क्लाइंट को सेंड करेगा कि सर योर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि हमारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है।
दिस इज द एविडेंस, क्योंकि जब आप समाधान में रिकवरी के लिए जाएंगे ना, तो वहां से जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करें। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम जस्टिफाइड करना भी बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ सर्विस, राइट। एक्सेप्टेंस पे भी आता हूं, उन्होंने लिखा है वो क्या है वो मैं बताता हूं। तो ये कंप्लीशन डेट, अगर डेट ऑफ इनवॉइस होता तो आप मान के चलिए एमएनसीज इनवॉइस बनाने ही नहीं देते। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर तो ये पंगा ही नहीं आता। भैया इनवॉइस आप 3-4 साल का एक साथ ही बना देना जब हम आपको पेमेंट करेंगे, राइट। तो ऐसा पंगा ही नहीं आता। तो डेट ऑफ इनवॉइस तो आप, जो हम बात करते हैं हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में डेट ऑफ इनवॉइस फिट हुआ है, तो वो नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है कहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होता है कि सर अब आप ये बात तो कर रहे हैं, ये इतनी कहानियां बता तो रहे हैं, तो जब प्रोविजन की बात आएगी, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का प्रोविजन, ये डिसअलाउंस तो एक बात हुई, दूसरा है कि जब पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट का प्रोविजन भी टैक्स ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि भाई जब 45 दिन के अंदर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट का प्रोविजन। अब वो इंटरेस्ट का प्रोविजन कौन से दिन से बनाए? डेट ऑफ कंप्लीशन से। अब वो डेट ऑफ कंप्लीशन पता कैसे लगेगी? ये गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया, मेरे को भी पता नहीं लगा। आपको किसी को पता लगे तो बता देना। और हकीकत है, मोहित भाई को भी मैंने बताया कि भाई मेल डाल दो। अब मोहित भाई को मैं 10 दिन बाद में पूछूंगा, मोहित भाई सर्विस कब कंप्लीट हुई थी? 1 साल बाद। अब मोहित भाई बोलेगा यार कंपनी तो बनाई थी, इसका सर्टिफिकेट निकालो, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा उसी दिन कंप्लीट हुआ होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये एक थोड़ा सा एंगल है कि इंटरेस्ट का प्रोविजन वैसे 15 दिन और 45 दिन डेट ऑफ सर्विस से, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विसेज से। अब एक्सेप्टेंस में मैं आता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन बिटवीन आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज लेट मी नो। अच्छा हाँ, मैं इस पे 2-3 चीजें लिखी हुई है। सप्लायर, मैंने आपको बताया कि जो सेलर है और जो बायर है, तो बायर पे ये एप्लीकेबिलिटी है इंटरेस्ट प्रोविजन की और डिसअलाउंस की। 43B वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 टाइम्स है, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना है मैं अभी नहीं बता रहा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, वो मेरे आप वीडियो पे देख सकते हो यूट्यूब पे। और सप्लायर मींस का क्या होगा? देखो यहाँ पे सेलर कौन होगा, हम बात बात हम बोलते हैं MSMED, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। तो मैं आपको बता दूं इस प्रोविजन के लिए मीडियम इंटरप्राइजेस का कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो और स्मॉल ही, माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और 5 करोड़, शायद हाँ 5 करोड़ टर्नओवर, और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ 50 करोड़ टर्नओवर, राइट, शायद ऐसा ही है। कहीं गलत हो तो आप करेक्ट कर देना। वो डेफिनेशन आप गूगल मारोगे तो आपको पता लग जाएगी। दोनों को साथ में देखना है, अगर एक भी ऊपर हुआ तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। अक्षमा जी आप जस्ट ड्रॉप मैसेज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन मैं लेता रहूंगा, जैसा भी टाइम मिला बीच में मैं टेकअप कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हाँ, हम बात कर रहे थे माइक्रो स्मॉल की। माइक्रो स्मॉल में ही एप्लीकेबल है, दूसरे में नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि सर क्योंकि मार्च क्लोज हो रहा है, कई क्वेश्चन हमारे बिजनेसमैन बिजनेस हाउसेस भी पूछेंगे। और ये मैं ऐसा बता दूं, ये ऐसा खतरनाक वाला प्रोविजन है। अभी तक मैंने जितने भी सेशन दिए, अभी लास्ट के 15 दिन में 4 सेशन थे मेरे, नोएडा, शादरा, 2 और जगह थे, ईस्ट एंड स्टडी सर्किल में, एक और जगह था। सब में मैंने यही बात कही, और पीछे तो मैं कहता ही आया हूँ, जब 2023 का बजट भी मैंने जब पढ़ा तब भी मैं कहता हूँ इस प्रोविजन का, ऐसा खतरनाक प्रोविजन है। हो सकता है MSMED जो ये चेन चल रही है, इसमें बीच में चेन में दरार भी पड़ जाए, खत्म हो जाए कहीं। रीजन मैं बताता हूँ आपको। आप डिसअलाउंस मान के चल रहे हैं, और आप भी देखना, मैं जब मैंने कई क्वेश्चन किए, नोएडा हो चाहे फरीदाबाद हो चाहे ईस्ट एंड, वहां पे कुछ 2-3 सीओ ने उसमें हाँ भरा। शायद आप में से भी, प्लीज गिव मी ए नोट। मैंने क्वेश्चन ये किया, क्या आपका कोई क्लाइंट ऐसा है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में जिसको MNC या अदर कंपनीज ने काम करने से मना कर दिया कि आप MSME में आते हैं तो हम आपसे काम नहीं करेंगे? एनीवन जो हु आर लिसनिंग टू मी कैन जस्ट यस ड्रॉप ए मैसेज यस, कि आपने कभी ऐसा आपके क्लाइंट के साथ हुआ है कि उसने मना, यस
अक्षमा जी इज ऑल्सो सेइंग यस, करण जी इज ऑल्सो सेइंग यस, कि मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, आप इसकी जो मेनी टाइम्स, अक्षमा जी मैं फिर कह रहा हूँ, थैंक यू फॉर सेकेंडिंग मी। एमएसएमई के प्रोविजन मेरे क्लाइंटों के पास, क्लाइंटों को बड़ा मैं मतलब डिस्कशन होता है, बोला सर ये तो दिक्कत वाला काम हो गया, कंपनी मेरे को काम नहीं दे रही। वो बोल रही है क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि ये प्रोविजन क्या बोलता है, अब कंपनी क्या कहती है, 90 दिन का प्रोविजन रखती है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, पर ये एमएसएमई एक्ट सुनता ही नहीं है किसी। तो यानी अब कंपनी कुछ भी एग्रीमेंट बना ले, उसका कोई लेना देना नहीं, अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड बंदा अगर केस कर देगा तो वो कर देगा, और 3 टाइम्स उनको पता है, 3 टाइम्स रिकवरी होगी इंटरेस्ट के साथ, तो बहुत बड़ा हिट है ये, इसलिए काम मिलना भी कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं मैं, थैंक यू करण जी, अक्षमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है कि ठीक है, उसने हमें रजिस्टर होने से मना कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है करण जी, ये हो रहा है, और कई लोग तो करवा भी नहीं रहे कि भैया क्या करना है, काम ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है मेरा कि साहब ठीक है, हम एमएसएमईडी में है, हम प्रोविजन बना रहे हैं, सर आप जो ये कह रहे हो कि खत्म हो जाएगी चेन, वो कैसे? रीजनिंग मेनी टाइम्स क्लाइंट डिनाइड टू रजिस्टर अंडर एमएसएमई, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अक्षमा जी। अब आप केवल मेरा सिंपल सा एक ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना जो मैंने किया, आपका कोई भी, हम मोस्टली मीडियोकर क्लाइंट्स के साथ में, हमारे 80% क्लाइंट मीडियोकर होते हैं, मान लो 20 25 30 करोड़ या 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाले। अब उन माना एक 50 करोड़ की मान लेते हैं 50 सीआर की टर्नओवर है एक बंदे की, और उसका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली क्या होता है कि हो ही जाता है, कभी 50 लाख 60 लाख देने रहते हैं मार्केट। मान लीजिए 50 lakhs उसका अभी भी बाकी है, मैं तो कम बता रहा हूँ, नॉर्मली ज्यादा होते हैं, मार्केट के क्रेडिटर खड़े हुए हैं, और अब अगर ये पेमेंट नहीं कर पाता 45 डेज या 15 डेज के अंदर, तो आप 30% आप इसका मान के चलिए डिसअलाउड होगा। 15 लाख रुपए का टैक्स उसने जिंदगी में आज तक पेमेंट नहीं किया है, इस डिसअलाउंस के कारण कैसे करेगा? और दूसरी तरफ मुसीबत एक और है, बीइंग अ प्रोफेशनल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू साइन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इफ वी हैव लिस्ट ऑफ एमएसएमईडी, और आप कैसे जस्टिफाइड करोगे? टैक्स ऑडिटर के लिए कंप्लायंस क्या आएगी? अभी तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपडेट होके आनी है, उन्होंने रिटर्न नोटिफाइड कर दिए, 3 नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो अभी तो कई चीजें आनी है। इसके लिए क्लाइंटों को अभी से अगर हमने अलर्ट नहीं किया तो मान के चलिए दिक्कत बड़ी होने वाली। डिसअलाउंस आप बताइए, अगर कोई मेरे सामने अगर वीडियो ओपन होगा तो मैं जरूर अनाउंस करूंगा, गुप्ता जी हैं कि आप में से, हाँ शायद चैट बॉक्स में मेरे साथ ही हैं, सुरेश जी हैं, अक्षमा जी है, अक्षमा जी, मैं सुरेश जी और करण जी, अगर मैं अपन आपस में डिस्कस करें, क्या हम अगर अपने क्लाइंट को बोले कि मैं तेरा 50 लाख डिसअलाउड करूंगा और 15 लाख का तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, क्या हम ऐसा कर पाएंगे, लिटरली कर पाएंगे क्या, या क्लाइंट हमसे वो साइन करवा पाएगा? हाँ इतना डिस्कशन का सार यही है ऑडिट चली जाएगी, अरविंद जी भी कह रहे हैं सर ही विल चेंज, बिल्कुल क्लाइंट भाग जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला। आप समझिएगा इसकी जो मतलब हीट है इस सेक्शन की, इतनी जबरदस्त होगी, बड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, किया तो मुसीबत, नहीं किया तो मुसीबत। तो अभी से आप वीडियोस डालें, आप राइटअप डालें, आप मैसेज डालें, बिल्कुल क्लाइंटों को आप अवेयर करें। आपने जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है उसमें भी डालें, मैंने वीडियो मैंने तो 3 3 4 4 बार ऑलरेडी डाल चुका। आप कोई क्लाइंट आके बोलेगा तो हमको नहीं मालूम किस किस को समझाएंगे। हाँ देखो, हाँ सुशील सर एक और बात करें, विल डू अदर मेंबर, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो वो जाएगा और करवाएगा भी, सुशील सर। और अब इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई एमएससी रजिस्टर डीलर्स नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी, दिस मैटर शुड बी टेकन अप विद आईसीआई लेवल विद एमओएफ। जी सर, बहुत मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने हर एक सेशन में आप पूछना जहां भी बोला है, और सबने मतलब मेरे से सेशन के बाद में आके काफी डिस्कशन किया कि सर ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है, हम अभी तक इसको अवेयर अवेयर हमको करना ही रहेगा,
नहीं तो आप बड़ा बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा सुशील सर, सुरेश सर और करण जी, बहुत दिक्कत वाला काम। हम इस पे नहीं जा रहे, वापस आ रहे हैं अपने उस पे। 50 लाख पे 15 लाख का टैक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चेन खत्म हो जाएगी बीच में। अब अगर एक एमएसएमईडी ने 15 लाख का टैक्स नहीं दिया या दे दिया, वो तो पैसे लाएगा कहाँ से? पहली बात, लोन लेके लाएगा क्या? अब उसने पेमेंट इधर लोन लेके दे दिया, उधर वो उसके जो उससे जिसने माल सेल किया है उनको पेमेंट नहीं करेगा वो। ये चेन लंबी जाएगी। ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। 50 लाख, 2-4 करोड़ तो किसी के भी बकाया रहते हैं साहब। अगर 2-4 करोड़ की बात करें, 2 करोड़ पे 60 लाख का पेमेंट देना, आप वो भाग जाएगा छोड़ के, भैया अभी मेरी बंद कर दो, मैं अभी से काम बंद कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये लिटरली इतना मतलब खतरनाक वाला प्रोविजन है। लेट इट बी। अब जो प्रोविजन है सो है। हमें अपनी बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन ये आता है कि साहब अब देखो, एमएसएमई में टैक्स ऑडिट हम करेंगे, तो जो हम कंपनीज ऑडिट के अंदर, अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, बट स्टिल हमें अवेयर रहना है। जैसे कंपनीज ऑडिट में अवेयर थे, वैसे हम अवेयर रहना है कि हमें हमें प्रिकॉशनली हमें अपने आप को बचा के चलना है। दैट्स इट। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये है 43B, खतरनाक वाला। ये मैंने इस पे लिमिट पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल सही बोला मैंने। लिमिट बिल्कुल ठीक डिफाइन की। ये 100 करोड़ नहीं है मीडियम, ये बढ़ गई थी 50 और 250 करोड़ हो गई, तो ये मीडियम पे एप्लीकेबल नहीं हुई। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये कंपनीज एक्ट के लिए डिस्क्लोजर है एमएसएमईडी एक्ट का। हमें से कोई नहीं देता है। आपको मैं फिर बता दूं, अगर कंपनी की ऑडिट करते हैं, ये देखो इतना लंबा चौड़ा ये डिस्क्लोजर है एमएसएमईडी एक्ट। ये डिफाइंड है एमएसएमईडी एक्ट में, सेक्शन 22 के अंदर। अरे मैं सर डरा नहीं रहा, मैं तो केवल जो प्रोविजन है वही बता रहा हूँ। टैक्स कलेक्शन प्रोसीजरल मिशअप एग्जांपल, LRC 20% TDS with few exception beyond mental in books। अच्छा, TDS जो हाँ, एमएसएमई 1 इन आरओसी, बिल्कुल सर। शायद थोड़ा सा मैं टेकअप, अगर आप बात कर रहे हैं कि जो टीडीएस अगर अभी 20% से है विथ फ्यू एक्सेप्शंस बियॉन्ड मेंटल बुक्स, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो 20% शायद मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो टीडीएस के नोटिस भी आ रहे हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं है, उसके कारण भी 20% शायद मैं सही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अरविंद सर जो आपने लिखा है बड़े शॉर्ट में, वो भी एक और अपने आप में बड़ा बसाड़ा है, उसको भी देखना है। बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ चलती रहती है। अब डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस ये मैं आपको बता चुका हूँ। खाली एक चीज आपको मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप देखना। जो एक्सेप्टेंस की बात की थी, शायद किसी ने बोला था इनबॉक्स के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। अगर एग्रीमेंट है राइट, तो देखिए Section 15 of the Act states that where the supplier supplies goods or render any services to any buyer, then the buyer shall make a payment on or before the date mentioned in the agreement. The proviso to this section states that the period of credit given by the seller shall not exceed 45 days from the day of acceptance, right? और फ्रॉम द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। किसी ने बोला कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, तो मैं कंप्लीटेड ऑफ सर्विस पे जा रहा था। मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस को डिफाइन करना था मेरे को। तो यानी कहने का बात है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम 45 दिन और 15 दिन में। तो ये एक्सेप्टेंस क्या है? देखो एक्सेप्टेंस क्या है, आपने जैसे मोहित भाई ने मेल भेजा, ये मान लिया गया, अगर 15 दिन के अंदर उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, डिम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। और जिस दिन आपने मेल भेजा तो वो बाय डिफॉल्ट। और अगर एग्रीमेंट नहीं है, if there is no agreement, then before the appointed date। appointed date का मतलब क्या हुआ? following immediately after the expiry of 15 days। मतलब जो ऑब्जेक्शन वाला 15 दिन वाला पीरियड है, वो वेट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो राइट, नहीं आया तो 16th डे से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन इतना भयंकर चलता है, मंथली रेट पे चलता है। इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर उस पर इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर इंटरेस्ट। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा एमएसएमई जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, बड़ी
मतलब स्ट्रिक्ट है और इन मोस्टली इन फेवर ऑफ, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, इन फेवर ऑफ जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनके फेवर में सारे डिसीजन मोस्टली आते हैं। अक्षमा जी सेइंग, अच्छा ओके, लोकेश जी सेइंग सर पहले की अनपेड लाइबिलिटी को ना पे कर सका तो आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। अक्षमा जी जस्ट टेकिंग, ये वाली आप स्लाइड की बात कर रहे हैं अक्षमा जी? ओके ये वाली, राइट। तो अगर प्रीवियस, अब बात आती है प्रीवियस के जो बकाया पिछले सालों के, देखो मैं आपको फिर बता दूं, अभी जो हम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं आगे बढ़ता हूँ। नमस्कार गुप्ता सर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पीछे की, तो ये बात करेगा ही नहीं है एमएसएमई। रीजन मैं बताऊं, जो 43 भी है वो बात करता है एक्सपेंसेस अलाउड डिसअलाउड। तो आपने एक्सपेंसेस अगर पीएनएल में डाले होंगे तो ही हमें क्या करना है, उसको डिसअलाउड करना है। अगर पीछे के सालों के एक्सपेंसेस हैं तो उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं होगा, डिसअलाउड भी नहीं होने वाला। तो ये बात तो लोकेश भाई ये क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पे आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल्स में नहीं जाते। हम ट्राई करेंगे ये भी खत्म करते हैं, 44 एडी भी खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं 1.5 घंटे में। आई रश टू मूव समवेयर। कुछ एग्जाम्पल्स है। अच्छा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबसे। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ गुप्ता सर। मार्च 24 के अंदर हमने एक ऑडिट का प्रोविजन किया, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मा जी जो मेरे सामने चैट बॉक्स में है उनको भी एड्रेस करता हूँ, लक्ष्मा जी, लोकेश भाई, करण जी, अरविंद जी, सुरेश सर, करण जी, सुशील सर। मार्च ऑडिट का प्रोविजन किया हमने, लेट्स अज्यूम मार्च 24 ऑडिट का प्रोविजन किया 1 लाख रुपीज, राइट। अरे सर 1 लाख की ऑडिट का प्रोविजन आज तक नहीं किया हमने, ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने। मोदी जी कहते हैं अपना विजन बड़ा रखना चाहिए, अपन ने बड़ा ही रखा है। 1 लाख का ऑडिट का प्रोविजन किया, राइट। और अब आते हैं इसका पेमेंट। ये तो प्रोविजन एक्सपेंसेस हमने प्रोविजन में डाल दिया 23-24 फाइनेंशियल ईयर। नाउ ऑडिट वाकई में हमने कंप्लीट की सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर ऑडिट कंप्लीट हुई। लास्ट दिन पे रिटर्न जाते हैं, हमने भेज दिया। अब क्या है, 1 महीने के अंदर जीएसटी बोलता है इनवॉइस भी बनाना है, हमने बना दिया सर। 15 अक्टूबर 2024 को इनवॉइस बना 1 लाख रुपए का। इसका पेमेंट नहीं हुआ 31 जनवरी 2025 तक, यानी 45 दिन तक मैं इन नटशेल कहता हूं पेमेंट नहीं हुआ, नो पेमेंट। अब मेरे को आप ये बताएं कि अब करना क्या है। आप समझे, मैं वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्च 24 ऑडिट प्रोविजन बनाया, और सिंस ऑडिट हुई 30 सितंबर को, तो हमने जो इनवॉइस जनरेट किया, ये इनवॉइस 1 लाख का, वो 15 अक्टूबर को किया, और 31 जनवरी को इसका पेमेंट आया। अब क्या हो, 45 दिन के अंदर तो पेमेंट हुआ नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एमएसएमईडी रजिस्टर्ड थी। इफ पेड बाय 31 इट शुड बी अलाउड। अच्छा सुरेश सर कह रहे हैं कंप्लीशन ऑफ सर्विस डेट इज 30 सितंबर, राइट, 30 सितंबर। अच्छा सुरेश सर आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक पेमेंट कर दिया तो अलाउड, बिल्कुल सही मान रहा हूं, पर सर बात, अब क्वेश्चन एक और आ रहा है। पहले मैं लेट मी कंप्लीट ये, इसमें क्या होगा, दो आए हमारे, सुरेश सर का आया कि अगर 31 मार्च से पहले पहले हो गया, क्योंकि विद इन द फाइनेंशियल ईयर है तो अलाउड हो ही जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा चलो अब हम एक और बात करते हैं, इसका पेमेंट 31 मई 2005 को हुआ, 25 को। देन
सुरेश सर, अब इसका पेमेंट हुआ 31 मई 2025। डिसअलाउड, अक्षमा जी सेइंग डिसअलाउड। वेटिंग फॉर सुरेश सर आंसर। हर्षवर्धन सिंघवी सर नमस्कार, हैप्पी टू सी यू हियर। Sir is also saying disallowed. Then for 24-25 it will be disallowed. Now this answer I want to be here in the chat box. Sir, expenses तो claim 23-24 में किया है हमने। Sir, expenses has been claimed at an audit as a provision in 23-24. तो 24-25 के अंदर disallowed होगा कैसे? Will not be affected, सुरेश सर saying कि कुछ भी नहीं होगा फिर। एनी अदर? मेरा क्वेश्चन आप समझे होंगे सभी लोग। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस केस में क्या होगा। करण जी सही, कुछ एक्सेप्शन तो मिलनी ही चाहिए, खासतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जी अक्षमा जी, बिल्कुल ये अपन को सोचना पड़ेगा कि इसमें जब एक्सपेंसेस ही क्लेम नहीं है, बिकॉज ITR would have been filed by मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर 2024। बिल्कुल सर, दिक्कत यही है, द मेन प्रॉब्लम इज कि इस तरीके का एक जो है इस कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं प्रोविजन बेसिस पे, और एक्सपेंसेस क्लेम हुआ 23-24 के अंदर। अब आगे पेमेंट कभी भी हो नहीं हो तो वो डिसअलाउड कैसे होगा, ये एक समझने वाली बात है। तो दिस इज अगेन अ ग्रे एरिया, जैसा कि शायद करण जी ने बोला कुछ एक्सेप्शन छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दी हमने। बेसिस शुड प्रीवेल, कुछ भी कह सकते हैं सर। नो, तो मेरा ये भी एक कंसर्न था जो कि हमने डिस्कस किया, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन जी। हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना है। इंटरेस्ट प्रोविजन डिले हुआ, इंटरेस्ट का प्रोविजन आए। हम सब जानते हैं टैक्स ऑडिट के अंदर इंटरेस्ट अलाउबल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, राइट? मेरे ख्याल से एग्रीड, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन एमएसएमई का जो डिलेड पेमेंट है दैट इज नॉट अलाउबल, राइट? क्लियर? यस, राइट। My next question is whether TDS needs to be deducted. भाई इंटरेस्ट वैसे अलाउबल तो है नहीं, अब TDS कटेगा कि नहीं कटेगा इस पे? मेरे ख्याल से सुरेश सर इसी समय शायद डाला उन्होंने यस कि कटेगा। एनी अदर व्यू? अक्षमा जी शायद लास्ट टाइम के लिए बोल रहे हैं यस, मेरे ख्याल से। कटना चाहिए, करणजीत सिंह। एनी अदर व्यू? I think no. Akshma ji is saying no. Otherwise, TDS violation would be there. Ankit ji is saying, Ankit Jain ji, no. आता हूं मैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, चलो TDS नहीं भी काटा क्या फर्क पड़ने वाला है? इंटरेस्ट तो वैसे भी अलाउड नहीं है। एम आई राइट? सुरेश सर, अंकित जी, अक्षमा जी और करण जी, राइट? क्योंकि डिसअलाउड तो करण जी सेइंग यस, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी कोई एक्सपेंसेस तो अलाउड कर नहीं रहे। अच्छा, इसको मैं यही छोड़ता हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट रिलेट करूंगा, आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर दूंगा कुछ ही देर में जब मैं 44 AD लेने वाला हूँ। आप नोट कर लीजिए, कहीं भूल नहीं जाए।
हाँ, वोलेशन इज मोर। आता हूँ सर, सुरेश सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आता हूँ उस पे। मैं आप जो कह रहे हैं सुरेश सर, अ, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर पॉइंट में 44 एडी पे लेना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि अगर टीडीएस कटेगा, देखो यहाँ व्यू कोई स्पेसिफिकली कहीं नहीं है, बट स्टिल मेरा थोड़ा सा जो मानना है कि अगर गुड्स के केस में ये प्रोविजन बन रहा है, जो गुड्स बेचा है और खरीदा है, तो गुड्स के केस में वैसे भी टीडीएस नहीं होता, और इसके कंसेक्वेंटली अगर प्रोविजन बनाना हो मोहित भाई, तो वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट इफ इट इज अगर आप सर्विस की बात करेंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्विस दी और उस पर टीडीएस काटना है, काटना पड़ेगा इंटरेस्ट पे। हाँ बिल्कुल सर, टीडीएस वोल्यूशन ओनली 30% डिसअलाउड अदर देन 100%। दैट्स फाइन इनफ सुशील सर। यहाँ मैं एक और चीज बता दूं, जो हम 43 भी पढ़ रहे हैं उसमें 100% डिसअलाउड है, और जो टीडीएस नहीं काटने से उससे 30% डिसअलाउड है। शायद ये बात सुशील सर कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे की। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ये सब ठीक है, ये मैं नहीं ले रहा अभी कुछ भी। हाउएवर द टाइम ऑफ, ठीक है, हमारा ये मैटर नहीं है अभी आज कोर्स के डिस्कशन का बात। अब देखो थोड़ा सा हम आते हैं 40। ये तो सारी चीजें थी जो हमने बात की एमएसएमई एक्ट की। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। अब मैं आता हूँ हमारी टैक्स ऑडिट 44 एडी 44 एडीए पे। वो भी इंटरेस्टिंगली हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। हम कोई टैक्स ऑडिट के क्लोज पे डिस्कस नहीं कर रहे, बट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी चीजें हम जो करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं। वो शायद हम आज इसको एड्रेस करने वाले हैं। और फास्ट करता हूं मैं, ताकि हम आधे घंटे में। हाँ अक्षमा जी, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, नो इशू। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट ये है कि मैं पेटीएम भेजूंगा, रॉयल्टी जरूर लूंगा आपसे। अदर वे अराउंड, आई विल सेंड यू इट अक्रॉस। थैंक यू अक्षमा जी। मैं टेक्स्ट में लास्ट में मैं नंबर शेयर करता हूँ, उस पर आप भेजिए। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट पे। माय पॉइंट रेज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सर। अच्छा सुशील सर, डायरेक्ट मैसेज है, बट स्टिल हम उस पर मैं ले लेता हूँ सर। अंटिल अनलेस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज अपलोडेड, मेरा व्यू हो सकता है, मेरा व्यू है। ये क्वेश्चन ये था कि बिना अपलोड किए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट करके आप दे दो। शायद बहुत पहले एक केस हुआ, उसके बाद में भी आ गया, शायद उसको खत्म कर दिया गया कि भाई अंटिल अनलेस आप अपलोड नहीं करते और वहां से एक्सेप्ट नहीं होता, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड टैक्स ऑडिट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं कुछ क्लोज है, इन क्लोज पे मेरे क्वेश्चन आपसे रहेंगे। हमारे यहाँ पे 5 क्लोज है। 40 हमारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो 44 एबी है, क्या बोलता है आप समझिएगा। हमारा टैक्स ऑडिट का क्लोज, वेट फॉर अ वाइट, क्या फर्स्ट क्लोज में फास्ट फिनिश करता हूं, इस पे हम नहीं जा रहे। फर्स्ट क्लोज है कि बिजनेस वाला है, और बिजनेस में बोलता है 1 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर है, यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। और फिर उसके बाद में असेसमेंट ईयर 21-22 से एक प्रोविजो ऐड किया गया, उसमें कहा गया कि 10 करोड़ है तो आपका 5% रिसिप्ट और 5% पेमेंट आपको देखना है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसी पे रखता हूं मैं। अब क्वेश्चन आते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, हमने, और अच्छा इस प्रोविजन के साथ में जब फाइनेंस बिल आया, बिल में तो ये कहा, और जब एक्ट आया उसमें उन्होंने एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया। उस प्रोविजो में ये डाल दिया गया कि अगर कोई भी चेक, कोई भी पेमेंट विदाउट अकाउंट, वो अकाउंट पे ही नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट पे ही नहीं है, या ईसीएस नहीं है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश। उसको कैश ट्रीट किया जाएगा। ये एक डेंजरस पॉइंट डाल दिया उसके अंदर। अब बात आती है, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक क्लाइंट है, उसका 9 करोड़ टर्नओवर है, कैश रिसिप्ट
जीरो है, काम ही नहीं करता। आप इस हम कई बार मैंने ऐसे देखा है, फिर भी टैक्स ऑडिट कर दी जाती है, या कैश रिसिप्ट जो आ रही है, जो कैश लेजर हम देखते हैं, उसमें ये 5% से लेस है और पेमेंट भी 5% से लेस है, पेमेंट और रिसिप्ट, फिर भी ऑडिट कर दी जाती है। पहला मेरा क्वेश्चन, क्या हम ऑडिट कर सकते हैं क्या? माय क्वेश्चन इज, इफ turnover is below or equivalent to 10 crores and the cash payment or receipt are not more than 5% as specified in the proviso of section 43B, 44AB, clause A, तो क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? यस और नो, क्या ऑडिट की जा सकती है? कंफ्यूज करने वाला सवाल है ऐसा? Possibly on ground of account pay check evidence not there. Yes. Suresh sir is saying yes. Akshma ji saying no. Karan Nagpal ji saying yes. Any other person? देखो यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई हम बैठे हुए हैं। आंसर आपके जो आपको समझ में आ रहा है बेस्ट आप दे सकते हैं, ताकि हम। उमेश जी सेइंग इफ प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्नओवर मोर देन 1 crore इज रिक्वायर्ड टू टैक्स ऑडिट। सर ये क्वेश्चन मेरे से नंबर ऑफ टाइम पूछा गया, आपका थोड़ा सा वेट करिएगा, इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, वेट करिएगा, बस थोड़ी सी देर वेट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में है, बट स्टिल हम कंफ्यूज रहते हैं, और हो सकता है कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। रमन तिवारी जी इज सेइंग यस। हाँ, तो ऑडिट नहीं कर सकते, कईयों ने कहा यस, कईयों ने कहा नो। अब एक सर सुरेश सर ने बात कही कि अगर वो अकाउंट पे ही चेक से कम, अगर वो अकाउंट पे ही चेक का एविडेंस हमारे पास हो। अब देखो यही एक बड़ी कहानी आती है, अगर एओ असेसमेंट में ये बोलते असेसी को कि भैया आप शो करो आपके जो चेक से पेमेंट है अकाउंट पे ही चेक थे कि नहीं थे। अब अगर वो, इफ ही इज नॉट एबल टू प्रूव दैट पार्ट, तो मान के चलिएगा अब टैक्स ऑडिट तो अप्लीकेबल हो जाएगा, आपने छोड़ दिया पर ऑडिट अप्लीकेबल। अब आता है कि सर हम ऑडिट कर रहे हैं तो करें कैसे? सर मैं आपको बता दूं, जो अपने चेट बॉक्स पे है, मोहित भाई, सुशील सर जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, रमन जी, उमेश जी, करण जी, अक्षमा जी, सुरेश सर, अगर हम ऑडिट कर रहे हैं प्लीज टेक अ engagement letter or a letter what is specifying in that particular part. See this particular line, आई, अब क्लाइंट हमें लिख के देता है क्या, आई वी आर नॉट श्योर ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन ऑफ इनवॉइस चेक्स ड्राफ्ट बिलो 2 lakhs। बताऊंगा 2 lakhs का बिलो क्यों, ईच टू बी बिंग अकाउंट पे ही और नोट, हमें पता ही नहीं है जो 2 लाख के नीचे का पेमेंट आया है, हमें पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि वो चेक ड्राफ्ट कैसे था, अकाउंट पे ही था कि नहीं था। एज द कस्टमर ऑफिस स्टाफ हैव डिपॉजिटेड द सेम इनटू माय बैंक अकाउंट विदाउट शोइंग टू मी, मेरे को बिना शो किए उसने जमा करवा दिए हैं। अब मेरे को पता ही नहीं है कि अब वो अकाउंट पे ही है, क्योंकि रिसिप्ट में भी ये एप्लीकेबल है। अब सिंस मेरे को पता नहीं है तो हो सकता है वो सारे के सारे ऐसे कैसे हो, तो सर आप ऑडिट कर दीजिए। we need to take engagement letter in this particular language, अदरवाइज अगर हम पीयर रिव्यूड हैं, आप समझिएगा, और आईसीआई हमसे पूछता है या गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि भाई साहब आपने ऑडिट की कैसे, आप तो करना ही नहीं चाहिए था आपको ऑडिट, आप जबरदस्ती ऑडिट कर रहे हैं एसएससी की। आप समझिएगा ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमको प्रूफ करना कि हमने ऑडिट क्यों की। अच्छा 2 लाख से नीचे क्यों बोल रहा हूं मैं? एनी आइडिया? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे एक लैंग्वेज है, मैं राउंड कर रहा हूँ, आंसर आया है किसी का, ये 2 लाख से नीचे की रिसिप्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ सुशील सर मैं भेजता हूँ आपको सब सब चीजें भेजता हूँ आपको। हाँ ये 2 लाख का ही क्यों?
यस अक्षमा जी से 269 रीजन वो 2 लाख वाला आपको प्रोविजन याद होगा कि अगर कोई भी इवेंट, समझ रहे हैं, 3 चीजें थी उसके अंदर, या एक्टिविटी ओकेजन, उसमें 2 लाख से ज्यादा अगर आपको कैश मिल गया तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, 100% पेनल्टी वो रहे। तो इससे हम वो लफड़ा ही नहीं चाहते कि हमें कोई 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव हुआ था, मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट या चेक इक्विवेलेंट वैसा, तो हमने उसको बिलो 2 लाख रखा। राइट, तो ये चीज क्लियर है जो हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो क्लोज ए, क्लोज बी, प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर हमें क्या बोला, 50 लाख। देखो 23-24 के लिए लिमिट्स बढ़ गई है, जो 44 एडी है, एडी की मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, वो 75 लैक्स और 3 करोड़ हो गई है। तो अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा दूसरा क्लोज क्या बोलता है, दूसरा सेक्शन ये बोलता है 44 एबी का कि प्रोफेशन है तो ये 50 लाख है। थर्ड सेक्शन क्या बोलता है, प्रेजम्पटिव, जो 44 ए बी बीबी जो नॉर्मली कम हम देखते हैं, बट डी क्लोज है वो बोलता है 44 एडीए, अगर लोअर इनकम आप ऑफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा कम हो, सॉरी ज्यादा होगी तो ऑडिट करनी पड़ेगी। ये मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, अब आता हूँ, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी कुछ ही देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ई क्लोज क्या बोलता है, 44 एडी 4 और 5 का जो मिला जुला रूप है कि आप एक बार एडी से बाहर निकल गए तो 5 साल तक आपको एडी में रहना है, अगर आप 5 साल तक नहीं रहे फिर बाहर निकले तो आपको 5 साल ऑडिट करवानी है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेन भी करनी है। तो ये मोटा मोटी ये सब क्लोज है। अब आते हैं, देखो इंटरेस्टिंगली अब इन्हीं क्लोज पे आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन है, अब देखना। ये मैं आपको बता ही दिया कि अमेंडमेंट हुआ था इस साल के लिए 23-24 के लिए एडी का जो CA/CB क्या है, मेरा क्वेश्चन आप आंसर देना। सीए हमको सबको पता है, हम सीए जब फॉर्म 3 CA क्यों यूज करते हैं और 3 CB क्यों यूज करते हैं, सामने लिखा हुआ भी है। हमने 17-18 और 18-19 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 के अंदर जीएसटी ऑडिट किया। मोहित भाई, हमने जीएसटी ऑडिट किया, एक प्रोप्राइटरी फर्म की जीएसटी ऑडिट हुई। अक्षमा जी, सुशील सर, सुरेश सर, रमन जी, एक प्रोप्राइटरी फर्म की टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट हुई। अब हमें उसकी टैक्स ऑडिट भी करनी है, कौन सा फॉर्म लगेगा, 3 CA की 3 CB? सेवनटीन एटीन 18-19 में हमने ऑडिट की है जीएसटी ऑडिट, उसके बाद तो गवर्नमेंट ने करने नहीं दी। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ नहीं करने दी, तो नहीं मुसीबत मोल कौन लेता। वन आंसर इज 3 CA कि भाई क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट हो रखी है तो हमें ऑडिट करनी है वापस। एनी अदर आंसर? 3 CB, हर्षवर्धन सर इज सेइंग 3 CB। 3 CB बिकॉज जीएसटी ऑडिट में सीए सर्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, सीए का है। नहीं नहीं अक्षमा जी एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ 17-18, 18-19 की। उस समय हमने जीएसटी ऑडिट सीए साइंड करके दिया हुआ है 17-18, 18-19 की। यस सुरेश सर, अभी तक आंसर है 3 CA। रमन सर इज ऑल्सो, रमन जी ऑल्सो सेइंग 3 CA। बस वेट करता हूँ कुछ एक 2-3 सेकंड के लिए। एनी अदर आंसर? 3 CA, मेरे ख्याल से सब 3 CA पे है। एनी अदर आंसर? आंसर इज 3 CB। अक्षमा जी अगेन 3 CB, आपने जैसे ही बोला मैंने बोला 3 CB। रीजन मैं आपको बता दूं, जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, और सीए के लिए बोला जाता है जब आप सीए तभी करेंगे, मतलब सॉरी सीए इन द सेंस 3 CA तभी फाइल करेंगे जब वो फाइनेंशियल ऑडिट। आप जीएसटी ऑडिट को, इट्स नथिंग बट द रिकंसिलेशन।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं है जीएसटी ऑडिट, वो तो केवल एक रिकंसिलेशन है आउटपुट और इनपुट को मिलाने के लिए। तो अगर हमने जीएसटी ऑडिट की है उस समय और टैक्स ऑडिट भी हुई है तो हमें 3CB भरना था, हमने 3CA भर दिया, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप ये दो चीजें जरूर डालें, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टैक्स ऑडिट के अंदर कहीं भी इसका क्लोज नहीं आता, तो आप कॉपी पेस्ट करके ये सब चीजें जरूर डाल दें। अब आते हैं नया जो इंटरकेसेस है उनको डिस्कस करते हैं, मजेदार पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। अच्छा सर, अब आते हैं 44AD क्या बोलता है। 44AD बोलता है कोई भी एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी मतलब 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है। मैं देखो अभी पुरानी लिमिट लेके चल रहा हूँ, 3 करोड़ हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया है, प्रोवाइडेड कंडीशन सेटिस्फाइड। और 2 करोड़ का टर्नओवर तक, 2 करोड़ तक टर्नओवर है, वो 44AD ऑप्ट कर सकता है, 8% 6% जो भी उसको लगे वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिचुएशन आपके सामने है, शूज का बिजनेस है एक ही एसएससी का, 1.50 करोड़ एक टर्नओवर है, क्लॉथ का बिजनेस है 1.80 करोड़। अब मेरे को ये बताओ आप, क्या 44AD दोनों में अप्लाई कर दें? Yes or no? Can we apply 44AD both the business? Yes or no? Yes or no? Answer solicited. एक में आना चाहिए. Suresh sir is saying yes. Is it proprietor? Proprietor same assessee. Same assessee. Both are trading. No. Answer is no. No, no, no. Akshma ji, Nitish ji. Umesh ji is also saying no. Then should not. Yes. एक यस आया सुरेश जी की तरफ से, नो। लोकेश जी, मोस्ट क्या सभी आंसर नो है। एनी अदर आंसर? ऑल बिजनेस टर्नओवर शुड बी एग्रीगेटेड, मीनिंग देयर बाय सुरेश सर आप कह रहे हैं नो, आपका भी आंसर नो है, तो कोई यस का बचा ही नहीं अभी। और यस इट्स प्रोप्राइटरी, असेसी इज, असेसी का नाम रख देते हैं ए, एक ही 2 बिजनेस है, एक ये वाला एक ये वाला। आपने पहले यस कहा था सुरेश सर, नाउ आर यू स्टेइंग विद योर डिसीजन यस और अदरवाइज यू आर वांट टू चेंज नो? आप कह रहे हैं यस, मतलब कि 44AD दोनों में ले सकता है, इसमें भी ले सकता है, इसमें भी ले सकता है, राइट? यस ही मान के चलता हूं मैं, क्योंकि यस लिखा हुआ है लास्ट, यस। सभी को मैं बोलता हूं इन दोनों के केस में 44AD ली जा सकती है सेपरेट, इसमें सेपरेट और इसमें सेपरेट। सर एग्रीगेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं 44AD की लैंग्वेज ऐसी ही है, दैट सेज एलिजिबल बिजनेस, एवरी एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल बिजनेस की बात करता है, उस पे आप ले सकते हो। तो एलिजिबल बिजनेस दोनों अलग अलग है। यस अक्षमा जी, दीज आर द एलिजिबल बिजनेस। नॉन एलिजिबल बिजनेस आप बता सकते हैं, आप में से अगर कोई बता पाए तो। 44AD में मैं फास्ट फिनिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10-15। हाँ, कमीशन है, एजेंसी बिजनेस है, राइट, ये एलिजिबल नहीं हो सकते। तो एलिजिबल बिजनेस अगर है, शू भी है क्लोथ भी है, तो ये सेपरेट हम 44AD देखेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। वेट फॉर अ वाइल, मैं जस्ट थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, वीडियो अगर किसी का खुला हो तो एड्रेस करना थोड़ा और इजी रहता है। एक्टिवनेस है बट स्टिल जस्ट चेकिंग फॉर द वीडियो।
वैसे जूम एआई इंटीग्रेटेड है, वीडियो ऑन होते ही आगे ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे। एक डॉक्टर है, हाँ नो इशू अक्षमा जी, मैं जस्ट सेइंग कि अगर वीडियो ऑन रहता है तो ज्यादा बेटर रहता है, इंटरेक्शन और अच्छा होता है। एक डॉक्टर है और उसकी फीस जो है मान लीजिए 30 लैक्स है, कंसल्टेंसी। बाहर मेडिकल शॉप भी बना रखी है भाई ने, उससे भी मान लो 10 लैक्स का इनकम है। अब रिटर्न भरता है ये भाई, क्या 44 एडीए ले सकता है? यस और नो? मेडिकल बिजनेस है, टू डिफरेंट प्रोफेशन। मेडिकल शॉप है, आप समझिएगा, सेल करता है दवाइयों का, सेल ऑफ मेडिसिन। मनीष सचदेवा जी, फॉर सेल 44 एडी, यस, मीनिंग देयर बाई कंसल्टेंसी के लिए 44 एडीए और मेडिसिन के लिए 44 एडी, यानी कि अगर ये फीस है इस पे हम 44 एडीए ले सकते हैं और इसके लिए हम 44 एडी ले सकते हैं, राइट? मेरे ख्याल से सभी आंसर ऐसे ही आ रहे हैं, चेक कर लेता हूँ ऊपर भी शायद कुछ आके गया होगा तो। राइट, एम आई राइट? हम दोनों ले सकते हैं। यस, विशाल चौधरी जी भी ऑल्सो सेइंग कि हम ले सकते हैं। यस सर, यू आर राइट, नो आई एम रॉन्ग। नहीं ले सकते सुरेश सर, रीजन बीइंग इलिजिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, 44 एडीए अगर जो एसएससी है वो इलिजिबल ही नहीं है 44 एडी के लिए, अगर आपको याद होगा तो। दोज हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44 डबल ए, 44 डबल ए है हमारा, प्रोफेशन को डिफाइन करता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और उनपे एप्लीकेबल है 44 एडीए, राइट? और 44 एडीए जिन पे एप्लीकेबल है वो लोग एलिजिबल नहीं है 44 एडी के लिए। फाइन प्रिंट आप 44 एडी पढ़ना। अगर कोई 40 इसमें एक्सक्लूड किया गया किसको? दोज हु आर कवर्ड अंडर 44 एडीए, मीनिंग देयर बाय जो प्रोफेशनल्स है। तो अगर डॉक्टर है, नहीं नहीं वो ठीक है, उसका डॉक्टर जाने, इनकम टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है सुरेश सर, इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। वो इलीगल काम करे, गुंडोस को बिठाया और पकड़ के क्लाइंटों से वसूली करे, इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं। वो तो बोलता है पैसे दे दो मेरे को, क्या लेना देना है? तू ड्रग्स बेच, तू हीरोइन बेच, कुछ भी बेच, मेरे को लेना देना नहीं है। तू तो इनकम डिक्लेयर कर, बाकी दूसरे एक्ट में जो होगा उसको 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 लेना देना है। तो हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलाउड कर रहा है नहीं कर रहा, वो जाने। हम तो बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में ऐसा कर सकते हैं क्या। पर मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% मेरे पास जो इनपुट आए उनमें था कि, और कर भी रहे हैं हम लोग, जबकि ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 44 एडी परमिशन ही नहीं देता 44 एडीए के साथ। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये एक और इशू जो हम, जो इंटरकेसेस है आपस में तीनों सेक्शंस की, बड़ी खतरनाक है। और हम सिंस डेली रूटीन के अंदर ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं, कई बार नोइंगली अननोइंगली कई ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि वैसे अलाउड ही नहीं है। तो ये भी एक हमारा डिस्कशन का पार्ट था, इलिजिबल एसएससी, राइट? तो मैंने आपको वैसे भी क्लियर कर दिया, इलिजिबल बिजनेस पे एप्लीकेबल है, इट्स फाइन इनफ। मैंने आपसे कुछ देख के करेक्ट किया, आप मेरे को देख के, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज डिस्कशंस और सेशंस। मैं भी कुछ सीख के जाने वाला हूँ आज। स्टिल ठीक है, ये ज्यादा हम और डिटेल में नहीं जाते हम। और एक मिनट, कैन डॉक्टर, ठीक है, ये मैंने कवर किया।
अपन even is other if assessee opt out under section, हाँ ये एक और क्वेश्चन है। आप समझिए, वही बात करते हैं, शू का बिजनेस है और एक क्लोथ का बिजनेस है, 44 AD हम ओप्ट कर रहे हैं दोनों में। अब हुआ क्या, FY, वेलकम अक्षमा जी, थैंक यू टू यू एज वेल। नाउ 44 AD एप्लीकेबल, हाँ अरे अच्छा याद दिलाया, आता हूँ, पहले वो लेता हूँ जो अपना पेंडिंग रह गया। सुरेश सर ने बिल्कुल, अच्छा 44 AD के अंदर TDS काटना है कि नहीं काटना? There is confusion, yes, no. Mohit bhai is saying yes. Wait for a while. बहुत सारे आंसर आए शायद। सुमित धामीजा जी yes. सुरेश जी saying confusion है थोड़ा सा। मनीष सचदेवा जी no. मोहित चौधरी saying yes. मोहित भाई अक्षमा जी saying yes. above 1 crore. Money because of no requirement maintenance of book of account. मनीष जी saying. अच्छा साहब, वही सेम क्वेश्चन आएगा। करण जी is also saying no in the opinion no. सेम सिमिलर, अगर हम इस पे TDS नहीं काटते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम कोई एक्सपेंसेस तो क्लेम कर ही नहीं रहे। सिमिलर फ्रंट पे जो हम इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, राइट, जो हम इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे। Yes, sir. Actually, there would be no disallowance under 40A, but what will happen that the assessee will be assessee as default under 201. एग्जैक्टली मोहित भाई, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है जो शायद सुरेश सर भी बोल रहे थे कि वो कंप्लायंस का कंफ्यूजन। बिल्कुल, अगर असेसी इन डिफॉल्ट, ये बड़ा मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक सेक्शन है इनकम टैक्स का। उठा के सीधा प्रोसिक्यूशन जेल में डाल देते, सुनते भी नहीं। अभी एक डायरेक्टर रह के आया है, वो सुनते ही नहीं उसकी, असेसी इन डिफॉल्ट। और प्रॉब्लम क्या है, वो MCA से पूरा मास्टर डेटा उठाते हैं। कोई साल का कब भी कोई डायरेक्टर बनाओ, सबको नोटिस भेज देते हैं। जैसे ही ये असेसिंग डिफॉल्ट प्रोसिक्यूशन का नोटिस आता है, वो डायरेक्टर सारे काम धंधे छोड़ के प्रोफेशन के पास भाग जाता है, वैसा उठा के ले जाएंगे। और ऐसा ही होता है कंपाउंडिंग में, जाओ इधर, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। तो असेसिंग डिफॉल्ट बहुत बड़ी दिक्कत है, नो डाउट। अगर आप एक्सपेंसेस को P&L में डेबिट करने का क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि हम डेबिट कुछ कर ही नहीं रहे एक्सपेंसेस के। अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस देयर इज नो डिसअलाउंस, रीजन बीइंग वी आर नॉट क्लेमिंग एनी एक्सपेंडिचर while calculating our income under section 44AD or with respect to the interest, because it is already disallowed in the books of accounts. But there is another part, assessee in default, वो बड़ा दिक्कत कर देगा। अगर assessee in default हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब साहब क्वेश्चन एक और आता है, किसी ने 1 करोड़ लिखा, शायद किसने लिखा, मैं जल्दी, अक्षमा जी ने लिखा, ये सब 1 करोड़। मैं आपको बता दूं 4 सेक्शन है हमारे में, थोड़ा सा शायद हो सकता है, मेरे को करेक्ट करना आप। एक है 94C, जे, शायद I है, और एक और है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। Yes, sir. Actually, there are 5 sections after Finance Act 2020. 194A, C, H, I, and J. These 5 sections. हाँ, शायद 4 या 5 सेक्शन है। तो इन चारों 5 सेक्शन में अर्लियर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, थैंक यू मोहित भाई, इंडिविजुअल और HUF, इन दोनों अर्लियर व्हाट वाज द टेक्स्ट व्हिच इज यूज्ड इन द एक्ट इज, अगर इंडिविजुअल और HUF का ऑडिट नहीं होता तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। तो 44AD में ऑडिट होता ही नहीं था, तो काटने की जरूरत नहीं थी। But now the language is drafted in such a way, if individual or HUF having turnover exceeding 1 crore rupees, आपको TDS काटना है, राइट। तो अब अगर हम 2 करोड़ तक 44AD में जाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर है, तो TDS काटना रहेगा। माइंड इट फ्रेंड्स,
प्लीज बी कॉशियस while dealing with these sections. काफी कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता, इट सीम्स कि नहीं काटना चाहिए, बट स्टिल द सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट. तो ये एक और पार्ट है. यस यस, वेरी डेंजरस. इसका नाम भी टीडीएस ही है, सबसे टीडीएस ही पार्ट है ये. अब आगे बढ़ते हैं और फास्ट फिनिश भी करते हैं. क्या यार, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशनल अटेंडेंस क्लोज भी ठीक है. 4080 में बैलेंस शीट के 4 आइटम मैंडेटरी. ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन. अच्छा ये सर जब बैलेंस शीट ही नहीं बैलेंस शीट ही नहीं बनाते. एक मिनट में आता हूँ, एक मिनट आता हूँ. अरे बाप रे, ये किस मोहित भाई. हाँ अच्छा, मैंने देखा क्वेश्चन डाल दिया इतना बड़ा. मोहित भाई ने डाला है, बिल्कुल ठीक बात है मोहित भाई. ACHIJ 4-5 सेक्शन में. For TDS one, I have put in the हाँ हाँ clarification. हाँ हाँ, you can refer this particular text which is just put in textbook by मोहित भाई. एक मिनट में क्वेश्चन ऊपर चला गया. क्या था? हाँ, 44AD के अंदर बैलेंस शीट में 4 आइटम मैंडेटरी है क्या? ये एक भाई साहब तो वहां पे केस करते समय लड़ लिए कि सर आप एक तरफ तो 44AD बोलते हैं कि भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना नहीं है, दूसरी तरफ से बैलेंस मांगते हैं, तो करना क्या है? अच्छा आप मेरे को एक चीज बताइए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, देखो 4 आइटम तो देना रहेगा. कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या 4 आइटम पूछे जाते हैं? हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 क्रेडिटर्स, नंबर 3 कैश, नंबर 4 स्टॉक. शायद 4 ही आइटम ही पूछे जाते हैं, राइट? तो आप भले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाते हो करण भाई, हाँ, उसके बिना रिटर्न जीरो. करण भाई बिल्कुल, कई बार हालत ही होते हैं, लास्ट में जीरो करना पड़ता है या क्लाइंट को बोलते हैं भाई जो तेरे मन में आ रहा है मेल पे डाल के भेज. इन चारों को तो एक्चुअली कंट्रोल होता ही है. मतलब अब डिपार्टमेंट का व्यू क्या है कि भाई अगर आपको डेटर्स ही पता नहीं कितने लोगों से लेना है तो फिर कोई सेंस नहीं. आपको कितने लोगों को देना है, वैसे देखा जाए तो कई बार लोगों ने फाइट किया, अभी तक इन्होंने रखा हुआ है कैश. आपके तो कैश इन हैंड होता है कितना है, और स्टॉक होता ही है, राइट? तो ये 4 आइटम जरूरी है. अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्ट भी कवर करता हूँ क्योंकि सर इन केस सीए इज सेफ बिकॉज ऑफ नो ऑडिट. सर इन दिस केस सीए इज सेफ. हाँ बिल्कुल, ऑडिट नहीं है वहां तो सेफ ही है हम, कोई दिक्कत नहीं है क्षमा जी. और उसके बिना ठीक है, ये कवर हुआ. व्हाट इज बेसिस पर्पस ऑफ मेंशन दिस फॉर, मैंने बताया उमेश जी. सर ऑडिट वालों को स्टॉक बैलेंस मेंटेन हो रहा नहीं, मेंटेन हो रहा. स्टॉक तो ऑडिट हो, बिना ऑडिट हो मेंटेन होता कहाँ है? 44 लिमिट 3 करोड़. यस मैंने बताया 3 करोड़ हो गई है अरविंद जी, सब्जेक्ट टू कंडीशन की 5% जो रिसिप्ट है वो कैश में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैश से ज्यादा नहीं होनी. मतलब जो 5% रिसिप्ट का पार्ट है वो कैश में उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन इज स्टिल लूमिंग, जीरो कर अच्छा कि क्वेश्चन था कि जीरो कर सकते हैं. सेशन में हूँ, बात करते हैं 5-10 मिनट. हाँ 10 मिनट में बात कर रहा हूँ सेशन में. सुमित जी ने माइक और रिकॉर्ड ऑन कर रखा है, नहीं कर रखा, कर रखा शायद. रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं है, पर पता नहीं किसी ने ऑन कर रखी हो, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता करण भाई. अपन फोन पे ही बात करेंगे कि जीरो कर सकते नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट कंपनी टर्नओवर एक्सीड. हाँ आ रहा हूँ उमेश जी, आपका क्वेश्चन अभी भी है. मैं अभी नेक्स्ट एक या दूसरे स्लाइड पे आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है. हम फास्ट फिनिश करते हैं क्योंकि जस्ट whether the first partner will be covered under definition. अच्छा हाँ, अब एक चीज बताइए साहब, मैं इसको बंद करता हूँ, अभी थोड़ा सा साइड में करता हूँ, और क्वेश्चन बड़ा रिलेवेंट है. पार्टनर्स को रेमुनरेशन जो मिलता है, उस रेमुनरेशन पे ऑडिट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इनकम तो बिजनेस प्रोफेशन है. उससे भी अलग क्वेश्चन, पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन मिला, मानो कि हम सीएस हैं
पार्टनर है, 20 लाख रुपए रेमुनेशन मिला, क्या इस पे 44 ADA लगा दूं मैं? 10 लाख इनकम शो करता हूं, टैक्स भरता हूं, बताइए आप। नो, इट्स द नेचर ऑफ सेल, ना 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 ना, सैलरी नहीं हो सकता। पार्टनर रेमुनेशन विल ऑलवेज बी ए बिजनेस इनकम, अक्षमा जी। यस सर, इफ एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट देन ऑडिट शुड बी डन। मोहित भाई भी कह रहे हैं कि मतलब लगा सकते हैं और फिर ऑडिट भी होनी चाहिए। नो, नॉट एलिजिबल बिजनेस। करण भाई कह रहे हैं नो, मतलब नहीं लगा सकते। No, its nature of salary should be audited. Expenses can be claimed to the extent legitimate. Right. तो नटशेल में मैं एक बात करता हूँ, आपने जो कहा बेटर ऑडिट कर दो, काम खत्म, हमें तो आपस में ऑडिट करनी। नटशेल में जो आंसर आए, नो इट इज फर्म्स बिजनेस। ओके, अशोक शर्मा जी सेइंग कि ये फर्म्स बिजनेस है तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक पेरेजाद जुराबियन, नाम सुना आपने किसी ने? केवल यस लिखना। मॉडल, मतलब अभी फेमस नहीं थी मेरे ख्याल से, अगर कोई 10 साल पहले, अगर मिलिंद सोमन और पेराजाद जुराबियन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी थी। उसने रिट लगाई एक, ये 2022 की है। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि जो ये रेमुनरेशन है, उसने यही कहा कि मैं तो रेमुनरेशन हूं, मेरे को तो 44 ADA में प्रोफेशन, सेक्शन 44AA में कवर करना है। 44AA क्या बोलता है? 44AA ये बोलता है कि प्रोफेशन की डेफिनेशन देता है कि कौन कौन प्रोफेशन में आता है, बराबर है। CA, जो एक्टर्स एटसेट्रा जो भी है, कोर्ट ने साफ मना किया कि आप एलिजिबल नहीं है जो रेमुनरेशन मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से उसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो आप 44 ADA ले सकते हैं और ना ही 50 लाख के ऊपर होगा तो ऑडिट होगी आपकी, आप प्रोफेशंस में नहीं आते। ये रहा आपके सामने जो साइटेशन था पेरिजाद जुराबियन का, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको, हमें सभी को ध्यान रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से उमेश जी आप वाला क्वेश्चन आ गया, आप ही आंसर दें। एक कंपनी है, देखो मैंने एज इट इज आपका क्वेश्चन पहले से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। अब इसका आप जवाब दीजिए कि जो कंपनी है उसका 55 lakhs का टर्नओवर है और वो IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेसिफाइड है 44AA के अंदर, ये मतलब प्रोफेशन के अंदर ऑडिट करनी कि नहीं करनी? मैं बस लास्ट फेज में चल रहा हूं और फिनिश करेंगे फास्ट। आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कशन के लिए, जैसा अक्षमा जी सेइंग यस। हाँ मोहित भाई, शायद मुंबई और कोलकाता ITAT ने भी लिया होगा, सही कह रहे हो मोहित भाई। ITAT बड़े अच्छे ढंग से प्लीड कर रहे हैं अभी। फॉर FY 23-24 44AB should not be applicable। 44AB 44 financial 23-24 44AB not applicable। मेरा क्वेश्चन है ऑडिट करें कि नहीं करें, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, उमेश जी वेर आर यू? नो, एज कंपनी आर नॉट ट्रीटेड एज प्रोफेशनल। परफेक्ट। गुप्ता सर, वैल्यूबल इनपुट, आप सभी के इनपुट बड़े वैल्यूबल रहे डिस्कशन में। शायद 44AD में एप्लीकेबल नहीं है। नहीं देखो, कंपनीज तो 44AD में आती नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ और नॉर्मल फर्म 44AD में आती है।
अरविंद जी सिंह नो, शायद ये उमेश सर का क्वेश्चन था। उमेश सर, अच्छा दिख गए, प्लीज रिपीट, आई मिस्टेक लीव। सर देखो इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप कैसे छोड़ के चले गए? वो ये आपका ही क्वेश्चन है, मैंने आवाज लगाई तब आप कहीं से भाग भाग के आए कि मेरा अनाउंसमेंट हो रहा है। ऑन लाइटर नोट सर, क्वेश्चन वही है आपका, कंपनी में कि ऑडिट होनी है कि नहीं होनी। टर्नओवर है शायद, एक मिनट ये चेट बुक्स हटाता हूँ मैं, क्या लिखा 55 लैक्स लिखा मैंने, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो कि स्पेसिफाइड है 44AA के अंदर, 55 लाख का टर्नओवर है, क्या टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा? आपका क्वेश्चन था 1 करोड़ पे करना है, क्या करना है? मैं आपको बता दूं, ये टैक्स ऑडिट नहीं होगा। और जो शायद गुप्ता सर ने भी लिखा है यहाँ पे कि कंपनी प्रोफेशन में नहीं आएगी, बिल्कुल इट इज स्पेसिफाइड कि कंपनी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये दोनों प्रोफेशन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट? अगर कोई मंदिर आईटी का काम करने लग जाए, एआई आने वाला है, एक ही भगवान कई जगह दिखाई देंगे अब हमको एक ही साथ में। इवन टर्नओवर नहीं 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 नहीं, अक्षमा जी, देखो मैं बात कर रहा हूँ, इस पे 50 लैक्स का लिमिट नहीं लगेगा, यानी कि कंपनी के केस में जब 44 एडीए नहीं है तो 1 करोड़ का लिमिट लगेगा, राइट? 1 करोड़ वाला लिमिट लगना है कंपनी के केस में। हमें बिजनेस वाला देखना है, प्रोफेशन वाला नहीं देखना। कंपनी का हमेशा बिजनेस ही होगा, प्रोफेशन में काउंट नहीं होगा। बिजनेस लॉस एंड अदर इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जाम्पशन ऑडिट अप्लाई। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है, मैं ये भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन मोर देन 50 सेशंस लिए 1-1.5 साल पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैं आता हूँ वापस, फास्ट फिनिश करता हूँ, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। 1 मिनट वेट करो, मैं यहीं से थोड़ा हटा देता हूँ, इसको भूल जाना। 231 एक क्वेश्चन है जो शायद वेदर एचयूएफ कवर्ड अंडर 44 एडी। सर देखो, अगर अब ये क्योंकि स्पेसिफाइड वो है 44 एडीए के अंदर, आपको पता ही इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म फर्म भी कवर है, 44 एडी के अंदर कवर है। और 44 एडीए की अच्छा बात कर रहे हैं आप, 44 एडीए के अंदर तो वही कवर हो पाते हैं सर जो स्पेसिफाइड, जो डिफाइन है, स्पेसिफाइड डिफाइंड है। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, इट इज मेंशन जो स्पेसिफाइड, जो क्या बोलते हैं, प्रोफेशन डिफाइंड है। अब सपोज करिए एचयूएफ, आप कह रहे हैं, अब हम हमारी फर्म की बात करते हैं, फर्म में सीए फर्म में क्या वो प्रोफेशन है? अगर फर्म में मैं बात करूं, एचयूएफ की बात करूं मैं, तो एचयूएफ के अंदर क्या सभी सीए हैं जो सीए का काम कर रहे हैं? अब वो होगा कि नहीं होगा? तो ये एक डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि सारे के सारे, अब नहीं नहीं, कर्ता से नहीं होगा सर। कर्ता अगर काम कर रहा है सीए का तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है, तब कुछ नहीं हो सकता, तब तो एचयूएफ जा ही नहीं सकता। इफ कंपनी सेल ऑन स्विगी जोमेटो एंड टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ इज टैक्स। हाँ 1 करोड़ है, टैक्स ऑडिट तो मैंडेटरी रहेगा। मैंडेटरी इन द सेंस कि वो 10 करोड़ आपको देखना है, कि अगर वो 10 करोड़ वाला फुलफिल नहीं होता तो 1 करोड़। हाँ मैं आता हूँ, शायद करण भाई ने क्वेश्चन पूछा फास्ट, मैं लास्ट के मोड में हूँ, 2-4 मिनट में फिनिश करते हैं। एक मान लीजिए एक असेसी है, असेसी का नाम मान लीजिए, करण भाई का क्वेश्चन है, करण असेसी है, और उसका 60 लैक्स का टर्नओवर है, और उसका प्रॉफिट है 4 लैक्स, या मान लेते हैं इसको और कम करते हैं, इसको करते हैं 3 लैक्स, और उसकी सैलरी इनकम भी है, वो आ रही है 7 लैक्स। समझिए 60 लैक्स टर्नओवर है, ये टर्नओवर है, 3 लैक्स प्रॉफिट है, और 7 लाख की सैलरी है। मेरा मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, क्या करण भाई को ऑडिट करवाने की जरूरत है? और ये जो बिजनेस का काम कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं कपड़ों की,
क्या करण भाई को टैक्स ऑडिट करवानी है? फिगर आपके सामने है। यस, बिजनेस इनकम बिलो presumptive. रमन जी इज ऑल्सो सेइंग यस। क्या है? बट फंड्स ऑफ एचयूएफ कंट्रोल, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता सुरेश सर। फंड का ये कई केस लो भी आए, आप एक बार देखिएगा एंड लेट मी नो एज वेल। मुझे नहीं करवानी सर, प्लीज हेल्प आईटीआर। करण जी देखो, क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपकी ऑडिट करवाऊंगा भी नहीं, तो आप वेट करो, अभी आंसर नहीं दिया है। अरविंद सर इज सेइंग यस, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ असेसिस ट्रेडिंग बिजनेस में है, करण जी क्लोथ के बिजनेस में है, और 60 लाख का टर्नओवर है, प्रॉफिट 3 लाख का है, और सैलरी 7 लाख की है। तो अब देखो 6% डिफाइंड है 44 एडी के अंदर, दैट इज 3,60,000। अगर उससे कम है तो ऑडिट करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, 1 करोड़ से कोई मतलब नहीं है, हम 44 एडी की बात कर रहे हैं। अक्षमा जी, 1 करोड़ से पहले क्या था मैं आपको बता दूं। 40, मेरे को कहा आप में से कोई बता पाएगा क्या ये क्लोज एग्जिस्ट करता है 44 एबी के अंदर? हमारी जो टैक्स ऑडिट है कि इफ एनी एसएससी वांट्स टू डिस्क्लोज हिज इनकम लोअर देन द स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 एडी एंड हिज टोटल इनकम इज एक्सीडिंग अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या 44 एबी के अंदर कि असेसी अगर 44 एडी के अंदर यस नो नो फाइल करना चाहता है, लोअर इनकम करना चाहता है तो कर सकता है, परंतु लोअर इनकम दिखा सकता है, और अगर इसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ, पर ये 2017 से पहले लिखा हुआ था, और लोग आज भी इन केसेस में ऑडिट कर रहे हैं। आज भी ऑडिट हो रही है, आज भी टैक्स ऑडिट भरी जा रही है, हम में से भी कई लोगों ने की होगी। मैं आपको बता दूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्लोज ही एग्जिस्ट नहीं करता 44 एबी के। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब मैं बस फिनिश करता हूँ आपका, कोई क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस केस में 44 एडी टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अब शायद मैं आपका क्वेश्चन था करण जी का, इफ कंपनी सेल ऑन स्विगी जोमेटो एंड टर्न, नहीं यार आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? करण जी आपका क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करेंगे, शायद मैं कहीं स्किप कर गया, ये क्वेश्चन शायद इसी से रिलेटेड था। सर बिजनेस लॉस है एंड अदर इनकम ग्रेटर देन, तो यहाँ अगर बिजनेस लॉस भी है, ये तो मैंने यहाँ पे कह दिया 3 लाख, मैं कहता हूँ यहाँ पे लॉस भी होता तो भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। राइट, कंपनी के केस में तो 44 एडी एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो वहां तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। अब मैं बस फिनिश करता हूँ, दिस इज लास्ट स्लाइड। थैंक्स अ लॉट फॉर bearing me for in such a wonderful way and the interaction that we have did. Thank you once again. एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट इफ इट पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म 1 करोड़ से ज्यादा, शायद आप 44 एडी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, उम्मीद से 44 एडी में भी सेम ही है सर। पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म पे एप्लीकेबल है, और वो 40 लाख से सॉरी, जो 1 करोड़ वाला, जो 1 करोड़ से अगर नीचे है तो उसको 6% 8% मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये मेंटेन करने की कि भाई हमें टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, नहीं करवाने की जरूरत। राइट, तो हमें जो कंफ्यूजन ये है कि हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी, हमें टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्लोज अब अप्लीकेबल नहीं है। कोई भी चाहे एसएससी जो हम 44 एडी से कंपेयर करें, तो वो 1 करोड़ से अगर नीचे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉस है 4% मेंटेन किया है, 6% मेंटेन है, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड चैट बॉक्स पे कई क्वेश्चंस हैं। थैंक्स अ लॉट अक्षमा जी, थैंक यू फॉर दीज आर द वर्ड्स दैट रियली मोटिवेट अस। थैंक यू, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू विशाल जी,
Thank you so much for your feedback. तो मोहित भाई फॉर्मली हम मेरे ख्याल से Sure. So, very thank you to all the participants present here with today. As I told in the beginning, that the true value of this session lies in both the things: the knowledge imparted by our speaker, CA Abhishek Jain sir, and also the collective business wisdom that emerges from our interaction. And therefore, we express sincere gratitude to our speakers, CA Abhishek Jain sir, and also to everyone actively participating: Akshma ji, Suresh ji, Sushil ji, Karan ji, Arvind ji, Lokesh ji, and all of the present here with, whose name I may have missed. So therefore, and also sincere thank you to CA Nitin Kawarji for providing this opportunity and having me and CA Abhishek Jain sir today at this seminar. So- Thank you, Abhishek ji, and thank you, Mohit ji. Thank you, Abhishek ji, for your wonderful presentation, and thank you, Mohit ji, for nice mentoring this whole session. And I'm also thankful to all the participants. And even in case of any query, I believe all the queries might have been solved, clarified. Even in case if you need any further more requirement, I think Abhishek ji, if you are can again provide your mobile number or email ID if it is okay to you. yes, I provided. So that will be great, sir. So, sir, you can contact Abhishek ji on office time by maintaining the dignity of time also. So with these words, I once again thankful to Abhishek ji and Mohit ji, and thank you to all the participants. Thank you, sir. Thank you. Thank you.